नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज टू इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स और द एरियाज इन फिजिकल सिक्योरिटी और द कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, राइट? सो मेक श्योर you make notes while I explain the concepts and try to make till the end, try to watch this video till the end because I have some important concepts which I have shared in this presentation. So make notes, watch till the end and do not skip the video and share with your friends, with your colleagues so that they can also get to know about the concepts of intelligence and surveillance. So let's start this video. So first of all, let's talk about the basic overview. What is intelligence? Well, if I talk about that, intelligence is one of the most important tasks which needs to be done by the security personnel. So you ask why it is the important task? Because if you have the relevant information or the relevant intelligence about any specific task which is happening around your industry or your organization, it will help you to get to know about the threats and the vulnerabilities which might affect your organization. So that is why gathering relevant information and turning it into the intelligence is one of the most important tasks which can be done by the security personnel. And it also helps you to proactively mitigate the risks out of the threats, possible threats. So what does it mean? प्रोएक्टिवली मिटिगेट द थ्रेट्स। इसका मतलब यह है कि आप उन थ्रेट्स को होने से पहले, उन रिस्क्स को होने से पहले ही अपने इम्पॉर्टेंट मेजर्स जो हैं उनको आप ले लेते हैं, जिससे आप उनको होने ही नहीं देते हैं, राइट? सो वी कॉल इट प्रोएक्टिव मेजर्स. सो दिस वे यू कैन help your organization to stay ahead from the adversaries, right? And third, the most important is that it helps you to collect tactical information about your adversaries. So tactical information क्या होती है ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन adversaries क्या है? Adversaries हैं जो आपकी इंडस्ट्री या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं. तो वो कोई भी हो सकते हैं adversaries, राइट? लोकल चोर हो सकते हैं, लोकल पॉलिटिशियन हो सकते हैं, लोकल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, अदर इंडस्ट्रीज हो सकती हैं. तो उनके बारे में आप टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं, उसको इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं ताकि वो रेलिवेंट डिसीजंस ले सकें उस पर्टिकुलर थ्रेट के अगेंस्ट. So this is just the basic overview of intelligence and the importance of intelligence. So now let's talk about what you are going to learn in this video. I will cover this topic in two parts, the intelligence and the surveillance, and in this video we will talk about the intelligence throughout this video, right? So what is intelligence? The concepts of intelligence. First of all, there is a very broad difference between the information and the intelligence. So what is that information or what is that difference? बहुत से लोग जो हैं वो इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस के बीच में डिफरेंस नहीं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर मैं आपको बोलूँ कि कल वहाँ पर बम फटा, सो दैट इज़ द इंफॉर्मेशन, राइट? कि वहाँ पे बम फटा, लेकिन उस एक्सप्लोजन का मेरे ऊपर या मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या मेरी फैमिली के ऊपर या मेरे नेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर आप वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंस, राइट? अगर मैं आपको बोलूँ कि कल बारिश होगी, दैट इज़ इंफॉर्मेशन, बट उस बारिश से मेरे इंपॉर्टेंट काम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या मैं ऑफिस जा पाऊँगा, क्या मैं अपना जो बैंक में मुझे इंपॉर्टेंट काम करना था वो मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्या रास्ते में पानी भरेगा, क्या बाढ़ आएगी. तो जब आप ये सब एनालिसिस करते हैं, देन इट बिकम्स इंटेलिजेंस. अदरवाइज इट्स प्योर इंफॉर्मेशन विच कैन बी रेलिवेंट और इररेलिवेंट. So that is why you should not get confused between the information and the intelligence, right? और इंटेलिजेंस में कुछ वर्ड्स होते हैं, राइट, जिनको हम सिलेक्टिवली यूज़ करते हैं. और वो क्या वर्ड्स हैं कि मीनिंगफुल स्टेटमेंट डिवाइज्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन. सबसे पहले आपने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है कहीं से भी, उसमें से आपने कुछ मीनिंगफुल चीज़ें निकाली हैं कि भाई जैसे मैंने आपको बात की बारिश की और बॉम्ब एक्सप्लोजन की, राइट? उस इंफॉर्मेशन को आप कैसे इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करेंगे? पहले आप उस इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करेंगे कि मुझे इंफॉर्मेशन कौन सी चाहिए. अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई कल हवा चलेगी, तो उसका मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं. वो पहली बात, मैं उसे सिलेक्ट ही नहीं करूँगा.
राइट. तो दैट इज़ वाई वी हैव यूज द वर्ड हेयर सिलेक्टेड, कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए पहले मुझे वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट. देन मैं उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करूँगा कि भाई हाँ, अगर मुझे मौसम के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं वेदर अपडेट्स लूँगा, और देन कलेक्ट करने के बाद मैं उसे इवेल्युएट करूँगा कि भाई यस, ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रेलिवेंट है, ये इन्फॉर्मेशन कम रेलिवेंट है, या इसका मुझ पर इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, राइट. एंड देन इंटरप्रेट कि उस इन्फॉर्मेशन का क्या इम्पैक्ट होगा. अगर वो आप इंटरप्रेट कर लेते हैं देन इट बिकम्स इंटेलिजेंस. देन इंटेलिजेंस किसी काम की नहीं है अगर आप उसको रेलिवेंट लोगों तक ना पहुंचाएं, राइट. तो उसके बाद हम उसे एक्सप्रेस करते हैं, हम शेयर करते हैं किसके साथ, रेलिवेंट लोगों के साथ जिनको वो इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. सो वी कॉल इट दी डिसेमिनेशन या एक्सप्रेस्ड विद द शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स, कुछ भी आप कह सकते हैं, राइट. सो सिलेक्टेड, कलेक्टेड, इवेल्युएटेड, इंटरप्रेटेड एंड एक्सप्रेस्ड. तो ये आपको याद रखना है कि इंटेलिजेंस क्या है. इट इज़ इंफॉर्मेशन विच हैज़ बीन सिलेक्टेड, कलेक्टेड, इवेल्युएटेड, इंटरप्रेटेड एंड एक्सप्रेस्ड, राइट. And then I talked about the mistakes which you should avoid, that information is not intelligence, right. Then whenever we say I am collecting intelligence, this is a wrong phrase. You should avoid using this phrase, right. Instead you should use collecting information, because you collect information just as we have discussed few seconds back, that we collect the information and then we evaluate it. So that's why it's not collecting intelligence, you are collecting information and then turning it into the intelligence. So I hope कि आपको intelligence और information के बीच का जो difference है ये समझ आ गया होगा, right. So now let's move on. So then finally सभी बातों की एक बात, information plus analysis. अगर आप information gather कर रहे हैं बहुत सारी information multiple source से, और अगर आप उसको analysis कर रहे हैं, then वो क्या बन जाएगी, इंटेलिजेंस. सो इंफॉर्मेशन प्लस एनालिसिस बिकम्स इंटेलिजेंस. सो जस्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस फ्रेज. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज़ दी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंटेलिजेंस. कि इंटेलिजेंस हमें क्यों गैदर करनी है, मतलब क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम इंटेलिजेंस गैदर करके, राइट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ इंटेलिजेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस इज दैट we should ensure the organization related information is gathered, collected, reported and disseminated to those who need it. As we have discussed in just previous slide, that what is intelligence? It is selected, collected, evaluated, interpreted and expressed with the shareholders. And same statement we are using here, जो first part था, what is the purpose of intelligence? The purpose of intelligence is to as per the requirements, we collect the information, right. First of all, we identify the requirements, then we collect the information, and then we analyze the information, and then we share it with the relevant shareholders, yeah, stakeholders. Second is analysis and warning. When we have the information, we have the upper hand on our adversaries, and we then analyze, and then we give prior warnings to the organization or our industry that yes, this can happen, this lead to an incident, so please make relevant decisions. Then when we have the analysis and then we ring the bells, then it leads to the mitigation, prevention and readiness. Which means जब मैं आपको बोलूँगा कि भाई कल आपके ऊपर कोई अटैक करने वाला है, then you will be ready. You will not go outside the house. You will have extra protection. You will be extra cautious. You might go to the police to get some protection. So this is called the mitigation, prevention and readiness. And then security strengthening. If you have a security setup, you might strengthen your security. For example, अगर मैं आपको बोलूँ भाई कि कल सैटरडे को या कल फ्राइडे को आपके गेट के बाहर कुछ लोकल पॉलिटिक्स या एक्टिविस्ट आकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं रिगार्डिंग योर अपकमिंग एक्सपेंशन, या आपकी इंडस्ट्री जो है एक एक्सपेंशन प्रोजेक्ट चला रही है जिसको लोकल एक्टिविस्ट या लोकल लोग जो है वो उसके अगेंस्ट है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुकी है. तो अगर आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होगी तो देन यू विल हैव इन्फॉर्म द पुलिस. आपने पुलिस को बुला लेंगे, आप अपनी एक्स्ट्रा QRTs को ले लेंगे, राइट. आप अपने लोकल जो
लीगल डिपार्टमेंट के आपके हैं लोग, जैसे पीआर है या आईआर है, इन लोगों को आप पहले से ही इन्फॉर्म करके रखेंगे, अपने सभी गेट्स को क्लोज करके रखेंगे ताकि कोई भी फोर्सफुल एंट्री ना कर सके. सो दिस वे यू कैन मिटिगेट, प्रिवेंट एंड गेट रेडी फॉर द अपकमिंग थ्रेट्स. And then lastly is the culture. So when we have the intelligence, we promote a secure and safe environment for the people who are working in our organization or in our offices. So that is why it is very important to build the culture which can help the security personnel get the upper hand on any adversaries. And how do you develop that culture? By rewarding those who give you the relevant information about your adversaries, right? So this is the purpose of information gathering and turning it into the intelligence. So I hope कि आपको purpose समझ आ गया है कि क्या purpose है intelligence का. So let's move on to the next part. दैट इज़ दी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, कि कितने प्रकार की इंटेलिजेंस होती है. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक टैक्टिकल इंटेलिजेंस है. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस. द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज द स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस. सो स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस बिकॉज इट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट योर लोकल ट्रेंड्स, कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके जो आसपास चोर हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या इंटेंशंस हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल है ना क्रिमिनल मार्केट में या क्रिमिनल लोगों के बीच में. और इट ऑल्सो गिव्स यू एन इंफॉर्मेशन अबाउट द criminal capabilities and the vulnerabilities of your own organization. So we call it the strategic intelligence, which is purest form and which do not target any specific person or specific group. It talks about the intelligence as a whole. For example, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका एक एरिया है, उसके आसपास के 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के अंदर क्या चल रहा है, वो उसको मैं बोलूँगा स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस, राइट. एंड द नेक्स्ट इज द ऑपरेशनल इंटेलिजेंस. ऑपरेशनल इंटेलिजेंस क्या बोलती है कि ये एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, देन कन्वर्ट इट टू द इंटेलिजेंस, या आप किसी ग्रुप के बारे में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या आपने किसी कंपटीशन के बारे में, राइट. आपके आसपास 10 इंडस्ट्रीज हैं, तो आप धागा बनाते हैं, आपके आसपास की जो 2 कंपनियां हैं वो भी धागा बनाती हैं. तो आप चाहते हैं कि जो ये 2 कंपनियां सेम कंपटीशन में हैं, मुझे इनके बारे में इंटेलिजेंस कलेक्ट करनी है कि इनका किस तरह से स्कोप अपना प्रोजेक्ट एक्सपैंड कर रहे हैं, किस तरह से ये लोगों के साथ अपनी डीलिंग कर रहे हैं, क्या इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, राइट. तो ये हम बोलेंगे ऑपरेशनल इंटेलिजेंस, कि ये एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के बारे में बात करेगा, एक ग्रुप के बारे में बात करेगा और एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेगा. क्योंकि स्ट्रेटेजिक में मैंने आपसे कहा था कि ये एक आसपास के इलाके के बारे में बात करता है, ना कि किसी स्पेसिफिक आदमी या इंडिविजुअल या ग्रुप के बारे में. लेकिन ऑपरेशनल इंटेलिजेंस बात करती है स्पेसिफिक इंडिविजुअल. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि मुझे भाई किसी फलाना कंपनी के एमडी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये मैं बोलूँगा ऑपरेशनल इंटेलिजेंस, राइट. Now third and the most important is the tactical information. So tactical information क्या होती है? It is case specific. For example, मान लेते हैं कि आपके इंडस्ट्री में चोरी हुई है, राइट. तो चोरी होने के बाद आपको इंटेलिजेंस चाहिए कि उस चोरी में कौन लोग इन्वॉल्व थे, लोकल लोग कौन थे. तो उसको हम बोलेंगे टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, कि ये एक स्पेसिफिक एक केस के ऊपर आपने इंटेलिजेंस गैदर करी है, राइट. फॉर एग्जांपल, मैं बोलता हूँ कि भाई हमारे पुलिस की भाषा में बात करते हैं कि आसपास ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है. तो एक बहुत बड़ा ड्रग उन्होंने वो बस्ट किया है कि भाई उनको 50 किलो या 100 किलो का ड्रग्स मिला है. अब उस 50 किलो या 100 किलो के ड्रग की जो ट्रैफिकिंग थी उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है. वी कॉल इट tactical information, right. So that was all about the types of intelligence, and I hope कि आपको strategic, operational and intelligence, tactical intelligence के बीच का difference और मतलब समझ आ गया होगा, right. So now let's talk about the another important topic, that is the information cycle, कि ये cycle शुरू कैसे होता है, start से लेकर end तक हम कैसे intelligence gather करते हैं, right. So first of all is the tasking. So tasking क्या होती है? टास्किंग होती है कि आपको एक टास्क दिया गया है कि भाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक इंडिविजुअल के बारे में आपको इंटेलिजेंस गैदर करनी है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको इंटेलिजेंस गैदर करनी है. तो हम इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन,
कि आपसे आपकी इंडस्ट्री ने रिक्वेस्ट करी है कि भाई हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन ला के दो, तो आपको ये हम टास्किंग दे रहे हैं, राइट। तो टास्किंग क्या होती है? इट स्पेसिफिकली फोकस ऑन द फैक्टर्स विच इज़ कॉल्ड द पेस्टेलो। सो व्हाट इज़ पेस्टेलो, राइट। तो पेस्टेलो क्या है? ये एक एक्रोनियम है पेस्टेलो। मैं आपको बता देता हूँ व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर। PESTELO। सो P से होता है पॉलिटिकल, राइट। E से होता है इकोनॉमिक, S से होता है सोशल, एंड देन T से होता है आपका टेक्नोलॉजिकल, देन E से होता है आपका इन्वायरमेंटल, एंड देन उसके बाद है आपका L विच इज़ कॉल्ड लीगल, एंड O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल। तो वी कॉल इट पेस्टेलो। यानी कि इनके आसपास की जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको गैदर करनी है। इट कैन बी पॉलिटिकल, इट कैन बी इकोनॉमी रिलेटेड, इट कैन बी सोशल, आसपास की कम्युनिटीज़ में क्या चल रहा है, इट कैन बी टेक रिलेटेड, इट कैन बी इन्वायरमेंटल रिलेटेड, इट कैन बी लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस, इट कैन बी इंफॉर्मेशन फ्रॉम अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो पेस्टेलो क्या है? एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो जब आपको टास्किंग दी जाती है तो आपको इन्हीं में से कोई एक टास्किंग दी जाएगी कि भाई जाओ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन ले आओ, या इकोनॉमिक ले आओ, या सोशल ले आओ, या टेक्नोलॉजिकल ले आओ, राइट। सो दिस इज कॉल्ड टास्किंग। सो नेक्स्ट इज कलेक्शन। ये कलेक्शन क्या बोलता है कि आप किस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। अगर आपको मैंने बोला कि भाई मेरे को लोकल पॉलिटिशियंस के बारे में, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में इंटेलिजेंस लेके आओ, तो आप कैसे वो इंटेलिजेंस कलेक्ट करोगे? दैट इज़ कॉल्ड द कलेक्शन। सो इस कलेक्शन में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं विच इज़ कॉल्ड लाइक ह्यूमिंट, राइट। ह्यूमिंट का मतलब क्या है मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, राइट। उसके बाद आपके पास आता है ह्यूमिंट के बाद है सोसिंट, राइट। उसके बाद आपके पास है सिगिंट या साइनिंट, जो भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद है ओसिंट। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स या फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग है जिनको हम यूज़ करके इंटेलिजेंस या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। देन कोलेशन। मैंने आपको क्या कहा था कि जब आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं देन उसको कोलेट किया जाता है। कोलेट मतलब कि रॉ इन्फॉर्मेशन है, राइट। आपके पास 10 अलग अलग इन्फॉर्मेशन आई है, उनमें से आपको किस को प्रायोरिटाइज करना है, किसको पहले रखना है, किसको डिस्कार्ड करना है, उसे हम बोलते हैं कोलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। एंड देन दिस कॉल्ड द सिंथेसिस। सो सिंथेसिस क्या है कि रेलिवेंट और इररेलिवेंट जो मैंने आपको कोलेशन में बताया था वही सिंथेसिस में भी होता है। कोलेशन में क्या होता है कि आपके पास मान लो अगर 10 अलग अलग इन्फॉर्मेशन आई है तो उनको आपने 10 अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया, मान लीजिए। देन सिंथेसिस में क्या होगा कि सिंथेसिस में आप उसको रेलिवेंट और इररेलिवेंट में डिफरेंशिएट कर देंगे कि भाई ये रेलिवेंट है और ये इररेलिवेंट है, राइट। दिस इज कॉल्ड सिंथेसिस। एंड देन कॉल द एनालिसिस एंड असेसमेंट, जो मैं आपको बोला था कि इसको एनालाइज करना है, कि अभी इनमें से इंफॉर्मेशन में से एनालिसिस करके इंटेलिजेंस कन्वर्ट करनी है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन मिली है, इसका मुझ पे ये इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, विच वी कॉल इज एनालिसिस। एंड देन द फाइनल स्टेप इज़ द डिसेमिनेशन, कि जब आपने वो सारे उसके इम्पैक्ट निकाल लिए हैं तो आप उसको अभी बताएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने शेयर होल्डर्स को या अपने कस्टमर को जिसने आपसे वो रिक्वेस्ट करी थी। सो टास्किंग, कलेक्शन, कोलेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस एंड असेसमेंट, दीज आर दी 6 स्टेप्स ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग, राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स और आपको नोट्स बनाने तो बना लीजिए, राइट। सो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दी मेथड्स ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग, जो भी हमने बात की थी, ह्यूमिंट, ओसिंट, राइट। तो इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ ह्यूमन इंटेलिजेंस विच वी कॉल इज़ दी ह्यूमिंट, कि आप इसमें अपने सोर्सेज डिप्लॉय करते हैं। आप लोकल लोगों के साथ सोर्स डेवलप करते हैं, उनको आप डिप्लॉय करते हैं जगह जगह पे जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वी कॉल देम ह्यूमन सोर्सेज, राइट, एंड इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। देन इज़ दी सेकेंड, या आप कुछ भी इसको बोल लीजिए, मेरे को बोलने भी नहीं आ रहा यार इसको ना। तो इस सेकेंड क्या है? सिग्नल्स। इट टॉक्स अबाउट दिस सिग्नल्स, SIG मतलब सिग्नल, सिग्नल इंटेलिजेंस। तो सिग्नल इंटेलिजेंस कैसे गैदर कर सकते हैं आप? लाइन टैपिंग कर सकते हैं, राइट। आपने किसी का फ़ोन टैप कर लिया, आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या बग को यूज़ कर लिया, किसी की
रिकॉर्डिंग करने के लिए, राइट, आपने रडार्स यूज़ कर लिए, यानी कि कोई भी ऐसा फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग विच इंक्लूड्स सिग्नल्स विच वी कॉल इट SIGINT. एंड देन देर इज IMINT एंड GEOINT. सो IMINT एंड GEOINT का मतलब क्या है कि यू कलेक्टेड इंफॉर्मेशन वाया दी सैटेलाइट्स और एरियल फोटोग्राफी, राइट. हमारे पास ड्रोन्स हैं, हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, तो आपने वो सब यूज़ करके इंटेलिजेंस गैदर करी है या इंफॉर्मेशन गैदर करी है. देन इज कॉल्ड द MASINT, मेजरमेंट एंड सिग्नेचर इंटेलिजेंस. तो मेजरमेंट एंड सिग्नेचर इंटेलिजेंस में क्या होता है कि आप किसी पर्सन के बारे में अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तो आप उसके बायोमेट्रिक डेटा को कलेक्ट करते हैं, राइट. बायोमेट्रिक डेटा कुछ भी हो सकता है, उसके फिंगरप्रिंट्स, उसका DNA, उसका प्रिंट या कुछ भी, इसको हम बोलते हैं MASINT, राइट. देन इज दी SOSINT. SOSINT मीन्स सोशल मीडिया. सोशल मीडिया में आपने जाके उस बंदे को ट्रैक किया, उसको स्टॉक किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो इसको हम बोलेंगे SOSINT, राइट. यानी कि सोशल मीडिया से आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है या उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, वी कॉल इट SOSINT. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटेलिजेंस गैदरिंग. सो आई होप कि आपको इंटेलिजेंस का पूरा एक बेसिक ओवरव्यू यहाँ पे मिल गया होगा कि क्या क्या हमने आज बात की. हमने सबसे पहले बात की थी कि इंटेलिजेंस क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, राइट. और उसके बाद हमने बात की थी कि टाइप्स ऑफ कि पर्पस क्या है इंटेलिजेंस का, राइट. देन हमने बात की थी कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल. देन मैंने बात की इंटेलिजेंस साइकिल के बारे में, जिसमें हमने 6 स्टेप्स के बारे में पढ़ा, टास्किंग, कलेक्शन, कोलेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन. देन हमने बात की टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग, HUMINT, SIGINT, IMINT, GEOINT, MASINT और SOSINT. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड यू हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे. सो डो नॉट फॉरगेट टू subscribe this channel and like, share and comment in the description box which topic you want to cover me in the next video. As I told you, I will be talking about the surveillance in my next video. Other than that, what do you want to learn, what do you want to know, do let me know in the comment section. Thank you very much.